Good afternoon, everyone. Today we're going to start with the new lesson. Raman is a student of class 6th living in a multi-storied building in the New Delhi. Every morning, the milkman visits their house to deliver milk. A vendor drops newspaper at their doorstep. Soon after, Bittibai arrives. Bittibai is a domestic help. Both his parents are doctor. Raman gets ready for school and his driver Ramesh drops him by car. Sometimes Raman walks to school. On the way he crosses a market. There are many shops with shopkeepers selling all kinds of wares and services. Often a rickshaw puller approaches Raman to offer him his services. Raman crossed the market road carefully. It is a busy road. Life in city is a busy, fast, and everyone is in hurry. The office goers, school, children, vendors. रमन कौन है? रमन एक स्टूडेंट है, वो भी 6th क्लास का। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता है न्यू दिल्ली में। हर सुबह एक दूध वाला आता है जो उसके घर पे क्या दे जाता है? दूध दे जाता है। एक न्यूज़पेपर ड्रॉप करने वाला आता है उसके घर पे, उसके घर के आगे क्या न्यूज़पेपर अखबार फेंक के चला जाता है। उसके बाद बत्ती बाई आती है, वो क्या करती है? उसके घर के कामों में हेल्प करती है। रमन के पेरेंट्स कौन है? रमन के पेरेंट्स डॉक्टर हैं। रमन तैयार होता है स्कूल के लिए। उसका ड्राइवर क्या करता है? उसको गाड़ी में बिठा के कहाँ पे छोड़ के आता है? स्कूल छोड़ के आता है। कभी कभी रमन को स्कूल पैदल भी जाना पड़ता है। और जब वो जाता है स्कूल की तरफ तो रास्ते में क्या आती है? एक मार्केट आती है। और मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे दुकानदार क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं और सर्विसेज वगैरह भी देते हैं। कभी कभी जो रिक्शा वाला होता है वो भी रमन को ऑफर करता है कि वो उसका रिक्शा लेके उसके साथ उसको कहाँ छोड़ के आएगा? स्कूल छोड़ के आएगा। रमन क्या करता है? रमन जो मार्केट रोड है वो बहुत ही ध्यान से उसको क्या करता है? क्रॉस करता है, क्योंकि रोड बहुत ही बिजी होते हैं। और जो सिटी की लाइफ है वहाँ पे वो हमेशा की क्या होता है? बिजी रहते हैं सारे के सारे लोग। और बहुत सारी चीज़ें क्या होती है? बड़ी फास्ट चलती हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? जल्दी में होते हैं। कुछ ऑफिस जा रहे होते हैं, कुछ स्कूल जा रहे होते हैं और कुछ सामान लेके या देने जा रहे होते हैं। Let's start with the lesson urban livelihoods. Migration, the movement for livelihood. Many towns and cities grow with the time. With the growth of industries and shrinking of agricultural land, millions of people move to cities, towns to seek employment every year. The movement of people from rural area to urban area is called migration. Often people are lured to migrate to urban areas as unskilled daily wages earned by the development project in urban areas. Having moved to the cities, the migrants generally settle in a poor area of the city streets. These areas usually lack basic infrastructures, facilities, electricity, water, and drainage. In course of time, these areas developed into slums. These slums dwellers are the urban poor daily wage worker, casual laborers, domestic servant, rickshaw pullers, hotel boys, etc. At the same time, highly skilled and educated people also move from one city to another in the order to get better opportunity. They are mostly well paid too. Thus, movement is there in the skilled and unskilled segment. Sometimes high officials are placed in a rural area for a look after their project or industry there, but mostly people tend to move from rural area to urban in the search of better life and livelihood. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो टाउन्स होते हैं, जब बड़ी बड़ी शहर होते हैं, सिटीज़ होती हैं, वो समय के साथ क्या होते हैं? ग्रो करते हैं, बढ़ते जाते हैं। और ग्रोथ कैसे आती है? इंडस्ट्रीज एरिया जो सेटअप होते हैं और जो एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पे किसान किसानी करता है, वो लैंड क्या होती है? श्रिंक होती है। और बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग क्या करते हैं? मूव करते हैं सिटीज़ को। गांव से वो क्या जाते हैं? सिटीज़ में जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? वो रोजगार के लिए जाते हैं, जो काम करने के लिए जाते हैं, ताकि उनको वहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छी वेल पेमेंट मिले। और जब मूवमेंट होती है, कहाँ को मूवमेंट होती है? रूरल, गांव से अर्बन मतलब सिटीज एरिया में होती है। उसको हम क्या कहते हैं? द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरिया इज कॉल्ड माइग्रेशन। उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। ज़्यादातर क्या होता है? माइग्रेट कौन लोग करते हैं? अनस्किल्ड लोग, डेली वेजेस लोग क्या करते हैं? वो जाते हैं ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो अर्बन एरिया में होते हैं वहाँ पे जाके वो क्या कर सके? काम कर सकें। और वो क्या कर जाते हैं? सिटीज़ की तरफ चले जाते हैं।
जब भी वो जहाँ पे माइग्रेंट बन के जाते हैं तो वो कहाँ पे रहते हैं, वो पुअर एरियाज में रहते हैं जहाँ पे सिटी स्ट्रीट्स होती हैं। ज़्यादातर वहाँ पे क्या होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, वहाँ पे प्रॉपरली पानी नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हो पाती है और ड्रेनेज फैसिलिटी भी नहीं होती है। और समय के साथ वो चीज़ें डेवलप होती जाती हैं और वो क्या कौन से एरिया बन जाते हैं, वो स्लम्स एरिया बन जाते हैं जहाँ पे ज़्यादातर कौन रहता है, अर्बन पुअर लोग रहते हैं। जैसे कोई डेली वेजर जो दिहाड़ी लगाता होगा, कैजुअल लेबर हो गया, और जो दूसरों के घरों में काम करते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट हो गए, रिक्शा खींचने वाले हो गए, होटल बॉयज़ हो गए, और भी बहुत तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं। ज़्यादातर वो कौन सा एरिया होता है, स्लम एरिया होता है। और साथ ही साथ इसके साथ ही साथ जो हाईली स्किल्ड होते हैं, जिनके पास कुछ स्किल होती है और वो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, वो भी क्या करते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं ताकि उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाए, उनको अच्छी से जो पैसे हैं वो कमा पाएँ। इसलिए क्या होता है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों में क्या होता है, सेगमेंट में मूवमेंट होती है। कहाँ पे, सिटी टू सिटी या गांव से सिटीज़ की तरफ। ज़्यादातर क्या होते हैं कि हाई ऑफिशियल्स होते हैं, वो क्या करे जाते हैं, सिटी से रूरल एरिया में क्या किए जाते हैं, उनको दिया जाता है कि वो वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लगाना हो जाए, इंडस्ट्री लगानी, इसलिए उनको वहाँ पे क्या दिया जाता है, काम के लिए भेजा जाता है। बट ज़्यादातर क्या होता है, लोग कहाँ को मूव करते हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरिया ही की तरफ जाते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी सुधर जाए और उनको अच्छा रोजगार मिल पाए। कहाँ पे, अर्बन एरिया में। Migration of people from rural area has put heavy pressure on Swiss amenities in the town and city. This trend can be reversed by creating adequate employment opportunity for the rural people in rural area. जैसे कि लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, कहाँ पे, रूरल एरिया, गांव से कर रहे हैं, कहाँ की तरफ कर रहे हैं, सिटीज़ की तरफ, जिसके कारण जो सिटीज़ में है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होती हैं और सबको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं। बट इस ट्रेंड को रिवर्स किया जा सकता है, इस ट्रेंड को चेंज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि एडुकेट सफिशेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गांव में ही प्रोवाइड हो जाए, जिसके कारण लोग सिटीज़ की तरफ आना कम कर दें या बंद कर दें। Reason for rural to urban migration are lack of educational and health opportunity, lack of good infrastructure, seasonal agriculture tend to erratic rains, lack of consistent income through agriculture, lack of alternate employment opportunities. रीज़न होते हैं कि क्या रीज़न होते हैं कि जब कोई भी माइग्रेशन होती है गांव से सिटीज़ की तरफ, पहला होता है कि गांव में एजुकेशन की फैसिलिटी इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं हो पाती और साथ ही साथ हेल्थ के लिए भी कुछ खास फैसिलिटी नहीं होती और ना ही अपॉर्चुनिटी उनको मिल पाती है, और साथ ही साथ कोई भी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर गाँव में नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ में। और सीजनल एग्रीकल्चर होता है कि कभी बारिश पड़ गई तो फसल अच्छी हो जाएगी, नहीं तो खाने के लाले पड़ जाते हैं, और जिसके साथ उनकी एग्रीकल्चर से इनकम जो होती है वो भी अच्छी नहीं हो पाती है। और अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए उनको कहाँ आना पड़ता है, उनको सिटीज़ में ही आना पड़ता है, और वो अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए कहाँ पे आते हैं, सिटीज़ में आते हैं, कि उनको और ज़्यादा इनकम मिल पाए, कहाँ से, सिटीज़ में जाके काम करके। Next one is the major urban occupation. The milkman who deliver milk at your house is a self-employed, while the domestic helper, the driver who hired, earned fixed salary. However, all of them earn low wages. The shopkeeper and vendor are self-employed. The shop owners of big shops earn more money than vendors. Rickshaw pullers are either self-employed if they own the rickshaw, or they earn daily wages. जब हम अर्बन ऑक्यूपेशन में देखें तो क्या क्या काम होता है, अगर हम एक दूध बेचने वाले को देखें तो वो क्या होता है, वो घर घर जाके दूध बेचता है, पर वो उसका खुद का काम है। और अगर कोई डोमेस्टिक हेल्प करता है, जो कोई ड्राइवर का काम करता है, गाड़ी चलाता है किसी की, तो उसको क्या मिलती है, फिक्स्ड सैलरी मिलती है। बट सभी के सभी क्या करते हैं, जो बहुत ही कम पैसे कमाते हैं। अगर हम दुकानदार की बात करें या वेंडर की बात करें तो वो क्या होते हैं, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। बट जिनके पास बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा पैसे कमाते हैं, किनसे, शॉपकीपर वगैरह से ज़्यादा करते हैं। जिनकी बड़ी दुकान होगी, छोटी दुकान होगी तो कम पैसे कमाएंगे। और साथ ही साथ जो रिक्शा पुलर्स होते हैं, रिक्शा खींचने वाले होते हैं, अगर तो वो रिक्शा उनका खुद का है फिर तो वो ठीक ठाक कमा लेते हैं। अगर वो भी अगर किसी का लिया होगा या किराए पे लिया होगा तो फिर उनकी भी अर्निंग क्या होती है, बहुत ही कम होती है। Their earning vary from day to day. Raman neighbors have regular employment. This is because of their
qualification and skills. They earn good salary or do profitable business which enables them to live a good life. और रिक्शा पुलर की क्या होती है अर्निंग, दिन बाय दिन के हिसाब से हो सकती है कि कभी उनको अच्छे कस्टमर मिल जाते हैं और कभी कभार उनको सवारी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। रमन के जो नेबर हैं उनको क्या है, एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन उनकी अच्छी है, उनके पास कोई स्किल भी है, जिसके कारण क्या होता है उनकी सैलरीज वगैरह अच्छी हैं जब वो प्रॉफिट वाला बिजनेस करते हैं, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। द स्ट्रीट एरिया, टुडे देर आर मोर देन 1 crore वर्कर्स ऑन द स्ट्रीट. Vegetable vendors, cobblers, florists, barbers, push cart owners work on street. You might have also come across a few such people at a traffic crossing. They may have seen hawking in the railway station near tourist places or temple as well. Some people set up makeshift shop and sell their goods. These people do not have a license from corporation to run the shop, and their shops block the traffic. Hence, police dismantle their shops anytime. They then carry their wares in the cart or bags to another location. However, today government is working at providing vocational training and fixed places for street vendors so that they can also lead a life of dignity. जब हम स्ट्रीट एरिया की बात करते हैं तो आज आप देखते हो कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कहाँ पे काम करते हैं, स्ट्रीट में काम करते हैं। चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, मोची हो, चाहे कोई फूल बेचने वाला हो, कोई बाल काटने वाला हो, चाहे कुछ सामान ढोने वाला ही क्यों ना, सभी के सभी कहाँ काम करते हैं, स्ट्रीट में, गलियों में काम करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि ये सब ही क्या करते हैं, जो ट्रैफिक होता है उसकी क्रॉसिंग में भी ये करते हैं, क्या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कर देते हैं। कभी कभी आपने खुद ही देखा हो कि रेलवे स्टेशन में कोई जोर जोर से चिल्ला के अपना सामान बेच रहा है, टूरिस्ट प्लेस हो गया, जहाँ मंदिर के बाहर हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, अपना सामान उठाते हैं, दुकान में लेते हैं और बेचते हैं। बट क्या होता है, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, कोई कॉरपोरेशन से लाइसेंस नहीं होता, गवर्नमेंट इनको कोई लाइसेंस नहीं देती, जिसके कारण पुलिस आती है और इनके सामान को फेंक देती है, जहाँ उनका क्या कर देती है, बंद करने के लिए कहती है, जिसके कारण ये अपना सामान किसी रेडी या बैग में डाल के दूसरी लोकेशन पे चले जाते हैं। गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, गवर्नमेंट इनको वोकेशनली कुछ ट्रेनिंग वगैरह दे रही है ताकि ये क्या कर सके, एक फिक्स्ड प्लेस पे स्ट्रीट वेंडर क्या कर सके, फिक्स्ड प्लेस पे जाके वहाँ पे सामान बेच सकें और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। The market area. Cities have shops and showrooms on nearly every road. There are many shops selling items, garment, book, toys, electronic goods, jewelry, sweets, stationery, medicines, toys, and footwear. Big city have a several shopping plazas, confectionaries, grocery, hairdresser, clinic, florist, restaurant, ATM counters, coaching centers, etc. All render their services in a market. The permanent shop have a shutters while temporary one on the roadside are covered with the canvas cloth. Those who own a shop are self-employed. They sit at a shop themselves are employed salesperson and worker. People who work in shops and showrooms are manager, cashier, shop assistants, peons, cleaners, watchmen and so on. The municipal corporation has given them a license to run a shop. जब हम मार्केट एरिया की बात करते हैं तो सिटीज़ में क्या होती हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं, शोरूम्स होते हैं, जो कि आपको रास्ते में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। वहाँ पे क्या क्या बिकता है, कौन सा सामान, खाने का सामान हो गया, कपड़े हो गए, टॉयज़ बच्चों के हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगी, गहने वगैरह हो गए, मिठाइयाँ होगी, दवाइयाँ होगी, खिलौने हो गए, जूते पहनने वाले हो गए। और बड़ी सिटीज़ में क्या होते हैं, हमें बहुत सारे प्लाजाज वगैरह मिल जाते हैं जहाँ पे आप क्या हेयर ड्रेसर, क्लिनिक, रेस्टोरेंट, एटीएम काउंटर, कोचिंग सेंटर, ये सब मिल जाते हैं। ये सब कहाँ पे, वहीं पे सर्विसेज मिल जाती हैं मार्केट में। कुछ दुकानों पे शटर होते हैं जो परमानेंट होती हैं और कईयों पे सिर्फ कपड़े से उन्होंने कैनवस क्लॉथ से क्या किया होता है, ढक दिया होता है, ताकि वो कौन सी दुकान होती है, वो टेम्पररी शॉप्स होती हैं। जिनके पास अपनी दुकान होती है वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने सेल्समैन जो वर्कर रखे होते हैं जो वो उनका काम करते हैं। पर कभी कभी जो उन शॉप्स में कौन कौन काम करते हैं, जो अगर शोरूम वगैरह होंगे तो वहाँ पे मैनेजर्स होते हैं, कैशियर्स होंगे, शॉप असिस्टेंट, पियन, क्लीनर, वॉचमैन, बहुत सारे। और इन सब जो मार्केट एरिया में काम करती हैं दुकानें वगैरह, इन सबको क्या होता है, मिला होता है लाइसेंस, किसके लिए, टू रन ए शॉप। एक दुकान चलाने के लिए उनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से क्या लिया होता है, लाइसेंस लिया होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फैक्ट्री, वर्कशॉप, इंडस्ट्री।
Industry manufacture varieties of products such as plastic goods, garment, footwear, electronic goods, paper, machinery, textile, etc. These industry employ thousands of people. In some industry like iron and steel industry, the manufacturing process go on and non-stop. In such places, work in his shifts. These are 3 shifts of 8 hours each day. Amardeep runs a garment shops in a local market. He is an entrepreneur. He has rented the shop from a real estate person. He sells ready-made goods, garments as well as offer tailoring service at his shop. Amardeep gets a garment stitched in his factory. He buys clothes and other accessories from wholesale dealer. Amardeep realized that there is a huge demand for branded garment, so now he is trying to obtain franchise of a well-known brand. If he gets the permit, he will revamp his shop. This will attract more customers. Amardeep wants to earn enough money to buy his own shop. जब हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करते हैं, जिन्होंने खुद का काम खोलना है, चाहे वो फैक्ट्री हो, वर्कशॉप हो, चाहे इंडस्ट्री हो। इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारा सामान बनता है, चाहे वो प्लास्टिक के गुड्स हों, गारमेंट्स होंगे, जूते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होंगे, मशीन, पेपर, टेक्सटाइल। और इस इंडस्ट्री में क्या करते हैं, थाउजेंड्स लोग काम करते हैं एक साथ। और क्या होता है, अगर हम दूसरी इंडस्ट्री की बात करें, चाहे आयरन की होगी, स्टील इंडस्ट्री होगी, यहाँ पे भी क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, जो सामान बनाने का प्रोसेस होता है वो चलता ही रहता है। इसलिए वहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं, वहाँ पे लोग शिफ्ट में काम करते हैं, और एक शिफ्ट 8 घंटे की होती है, 3 शिफ्ट में ये काम चलता रहता है। अमरदीप भी क्या चाहता है, एक गारमेंट शॉप चलाता है लोकल मार्केट में, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। उसने क्या किया, उसने एक दुकान खरीदी है किसी रियल स्टेट पर्सन से। उसने क्या किया, उसको रेंट पे ले लिया हुआ है, और वहाँ पे वो क्या करता है, रेडीमेड गारमेंट बेचता है, और साथ ही साथ कपड़े सीने का भी क्या सर्विसेज वगैरह अपनी दुकान से देता है। अमरदीप क्या कर रहा है, गारमेंट स्टिच करता है अपनी ही उस फैक्ट्री में, और साथ ही साथ वो नए कपड़े बाय करता है, और अदर एसेसरी कहाँ से खरीदता है, होलसेल डीलर से खरीदता है। अमरदीप ने रियलाइज़ किया है कि यहाँ पे ब्रांडेड गारमेंट्स की क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए उसने क्या करने की कोशिश की है, एक वेल नोन ब्रांड के फ्रेंचाइज को खरीदने की कोशिश करी है। अगर उसको परमिट मिल जाता है तो वो क्या करेगा, अपनी दुकान को बदल देगा थोड़ा, ताकि उसकी दुकान में और सारे कस्टमर अट्रैक्ट हों। और अमरदीप चाहता क्या है, वो इतना कमाना चाहता है कि उसकी खुद की दुकान हो। Monthly wage employment. Shanti is a salesperson at a Amardeep shop. She works at the shop from Monday to Saturday. The shop is closed on a Sunday according to the municipal regulation. शांति क्या है, शांति सेल्स पर्सन है कहाँ पे, अमरदीप की शॉप पे। वो क्या करती है, वो काम करती है हर सोमवार से शनिवार तक, और संडे को क्या होती है, संडे को शॉप बंद होती है, क्योंकि म्यूनसिपलिटी रेगुलेशन के मुताबिक संडे को क्या रहेगी, मार्केट में दुकानें बंद रहेंगी। शी अटेंड द कस्टमर एंड डिस्प्लेज द ड्रेसेस, क्योट्स एंड प्राइसेस, लेटर फोल्ड द गारमेंट नीटली. She prepared a kacha bill and give to Amardeep. Amardeep verify the bill with the price tag and print a proper bill. Amardeep give Shanti a monthly salary. He also give her a bonus on Diwali if she makes a good profit. तो क्या करती है शांति, शांति कस्टमर को अटेंड करती है, उनको कपड़े दिखाती है, उनके प्राइसेस भी बताती है, और अगर कोई नहीं खरीदता तो उन गारमेंट को फिर से फोल्ड करके वापस उनकी प्लेस पे रख देती है। शांति साथ ही साथ क्या करती है, कच्चा बिल बना देती है, ताकि अमरदीप क्या करे, उसको वेरीफाई कर सके, और जो उसका प्राइस टैग है उसको अच्छे से प्रिंट प्रॉपर बिल बना के किसको, कस्टमर को दे सके। अमरदीप क्या करता है, शांति को मंथली सैलरी भी देते हैं, और साथ ही साथ बोनस भी दे देता है दीपावली पे, अगर क्या करे वो अच्छे प्रॉफिट बनाएगा किसमें, मार्केट में, अपनी शॉप पे। Daily wage employment. Rakhi is a factory worker in Amardeep factory, Karkhana. She worked in the day shift every day. She stitches the clothes and prepare ready-made garments. She stitches frocks and dress for the summer collection and coats and trousers for winter. Amardeep pay Rakhi daily wage. Rakhi earns 500 for 8 hours of a daily work. She often does overtime to earn more money. राखी क्या है, एक फैक्ट्री में काम करने वाली है। किसकी फैक्ट्री में काम करती है, अमरदीप की फैक्ट्री में, जिसको हम हिंदी में कारखाना भी कहते हैं। तो वो क्या करती है, शिफ्ट में काम करती है, कहाँ पे, अमरदीप की कारखाने में। तो वो क्या करती है, स्टिच करती है किसको, कपड़ों को जो प्रिपेयर होते हैं रेडीमेड गारमेंट के लिए। और साथ ही साथ वो क्या करती है, फ्रॉक हो गया, ड्रेस हो गया समर कलेक्शन में, और अगर विंटर की बात करें, कोट्स हो गए, ट्राउज़र हो गया।
अमरदीप क्या करता है, डेली वेज की काम करती है अमरदीप के कारखाने में, और राखी कितना 8 घंटे का 500 रुपया कमाती है, और कभी कभी वो ओवर टाइम भी करती है ताकि उसको क्या मिले, और ज़्यादा पैसे मिल पाएँ। Next one is the office area. Office are the run from service sectors such as the construction industry, retailing, automobile, hospitality, banking, insurance, telecom, communication, etc. Some office are run by government while others are private concern. Office can be big with 100 of people working. There are very small with just a few people in a one room setup. Some office have a branches in different cities and town. People work in different department of these office. The office department include sales, HR, account, etc. Managers supervise the work in the office while the clerical staff does the work. PN carry message and folder, and a major source of employment in cities these days is the business process outsourcing unit. Many foreign companies outsource some of their process to the BPO industry. Call center is a unit of a BPO. It handles large volumes of information telephonically. Beside these, there are the hospital, bank, hospital, educational institution, and various other institutions where people can find jobs. जब हम ऑफिस एरिया की बात करते हैं तो ऑफिस ज़्यादातर सर्विस सेक्टर के लिए काम करते हैं, जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का हो गया, रिटेलिंग का हो गया, ऑटोमोबाइल का हो गया, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, या टेलीकम्युनिकेशन जैसे आपका एयरटेल वगैरह, जियो वगैरह। ठीक है, तो ये सारे के सारे कहाँ होते हैं, ऑफिस सर्विस सेक्टर के हैं। बट कभी कभी क्या बहुत सारे होते हैं ऑफिस गवर्नमेंट द्वारा भी चलाए जाते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट होते हैं। इन ऑफिस में क्या होते हैं, 100 पीपल भी एक साथ काम कर सकते हैं, और कभी कभी तो फ्यू पीपल जस्ट एक रूम में ऑफिस होता है। तो ऑफिस के कईयों में क्या होता है, ऑफिस की ब्रांचेस होती हैं डिफरेंट सिटीज़ और टाउन में। ज़्यादातर पीपल काम करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट इन्हीं ऑफिस में, जैसे हो गया सेल्स का, हो गया ह्यूमन रिसोर्स का, हो गया अकाउंट्स का, हो गया एक्सेट्रा डिपार्टमेंट। इनमें मैनेजर्स होते हैं जो सुपरवाइज करते हैं ऑफिस को, और क्लरिकल स्टाफ क्या करता है, काम करता है। पीएन क्या करता है, मैसेज और फोल्डर एक दूसरे को प्रोवाइड देता है। और मेजर सोर्स एम्प्लॉयमेंट सिटीज़ में क्या है आजकल, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, बीपीओ यूनिट कहते हैं। बहुत सी फॉरेन कंपनी क्या करती है, अपना बहुत सारा काम बीपीओ इंडस्ट्री को दे देती है, जैसे कि कॉल सेंटर हो गया, यूनिट है किसका, बीपीओ का, जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीफोनिकली फ़ोन करके लेती है और देती है। बिसाइड इसके साथ ही साथ हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, और बहुत से इंस्टीट्यूशन यहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से जॉब ढूंढ सकते हैं। High monthly wage employment. Rohan is the manager of a bank. His office is located in an area where there are many other offices. He works from 9 a.m. to 5 p.m. Monday to Saturday. He has a holiday on Sunday. Rohan is responsible for daily operation of the bank. He ensures that the bank staff work well. He is responsible for the bringing in new customer and boosting the profits. रोहन कौन है, रोहन बैंक का मैनेजर है, और वो कहाँ पे काम करता है, उस एरिया में काम करता है जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज हैं। वो काम करता है 9 बजे से 5 बजे तक, सोमवार से शनिवार तक। उसके पास क्या है, संडे को उसको हॉलीडे होती है, छुट्टी होती है। रोहन का क्या काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरे के पूरे दिन का ऑपरेशन जो एक बैंक में काम होता है, वो सारा का सारा देखभाल उसका देखता है कि सारा का सारा काम अच्छे से हो, बैंक के जो स्टाफ में वर्कर हैं वो काम अच्छे से करें, और जो भी कस्टमर नए कस्टमर आने ब्रिंग करने लाने के लिए और अपना प्रॉफिट को बूस्ट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। कौन, रोहन। ही हायर्स न्यू स्टाफ and trains them in a bank procedure for handling money. Rohan is courteous and handle the customer complaint tactfully. He also cross-check the daily transaction of bank. Rohan gets a fixed salary every month. He is a permanent employee. He has opted for the provident fund scheme. Under this, he voluntarily deposit a part of his monthly income. Thus, he is saving for retirement period. Rohan can avail casual leave and medical leave. He can also take annual leave and go on vacation. Rohan other benefits include bonus, subsidized loans, pension, etc. Even though the urban areas offer so many facilities, occupational opportunity and lucrative lifestyle, these areas are not free from the problem. Urban area witness lots of problem in terms of congestion, sanitation, population pressure on civic amenities like public transport, infrastructure, environment, etc.
रोहन क्या करता है, रोहन नया स्टाफ लेता है और साथ ही साथ ट्रेन भी करता है अपने बैंक प्रोसीजर में, ताकि उसके पैसे का लेन देन अच्छे से हो पाए। रोहन बड़ा ही कर्टिस है और हर कस्टमर की कंप्लेन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करता है, और साथ ही साथ अपने बैंक की डेली ट्रांजैक्शन को भी क्रॉस चेक करता है कि कोई कंप्लेन या कुछ फॉल्ट ना हो। रोहन को क्या मिलती है, हर महीने फिक्स्ड सैलरी मिलती है, और वो क्या है, एक परमानेंट एम्प्लॉय है। और साथ ही साथ उसको क्या, उसने ऑप्ट किया है कि प्रोविडेंट फंड स्कीम्स में उसको बेनिफिट हो, जिसके कारण वो वॉलेंट्री खुद ही अपनी मंथली इनकम में से कुछ हिस्सा क्या करता है, डिपॉजिट करता है, और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, अपनी रिटायरमेंट पीरियड के लिए क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। रोहन को कैजुअल लीव भी मिलती है, मेडिकल लीव भी ले सकता है, और साथ ही साथ एनुअल लीव भी ले सकता है, ताकि वो छुट्टियाँ अपना टाइम कुछ स्पेंड करने के लिए जा सके। रोहन को और भी बहुत से बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि बोनस हो गया, जहाँ लोन्स में सब्सिडाइज उसको पैसे का कम लोन पे, और पेंशन वगैरह ये सब उसको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। चाहे ये अर्बन सिटी में वो काम बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छी ज़िंदगी मिल रही है, बट ये सब एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे कंजक्शन होगी, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन प्रेशर बहुत होता है, बहुत सारा काम होता है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वायरमेंट है, ये सब के सब अर्बन एरिया में ये सब प्रॉब्लम्स भी होती हैं इन सबको। इस लेसन के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो है एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दोज हु रन ए बिजनेस फॉर और ए वेंचर यूजिंग देयर ओन रिसोर्सेज, खुद से पैसे से जो काम स्टार्ट करते हैं। माइग्रेशन, माइग्रेशन में क्या होता है, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जाते हैं। डेली वेजेस, हु गेट्स वेजेस फॉर ए डेली वर्क। और कॉल सेंटर क्या है, कॉल सेंटर एक बीपीओ का यूनिट है, वेयर एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, हैंडल करते हैं क्वेरीज, बिलिंग एक्सेट्रा। बड़ी बड़ी कंपनियां ज़्यादातर क्या करती हैं, अपना काम टेलीफोन पे करती हैं, ये सब बीपीओ में आता है, कॉल सेंटर में। अर्बन लाइवलीहुड में ये सभी टॉपिक आते हैं, तो आप एक बार देख लो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो। थैंक यू।